घर में फंक्शन था तो फिर रिकॉर्डिंग देख ली? हाँ जी, बस लास्ट की 15 मिनट्स की बची है, वो देख लूंगी। जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन्होंने सीक्वेंस थ्योरी शुरू कर दिया। Now suppose we have numbers A, B, C in GP, then B by A always equal to C by B. Number divided by preceding number is always the same. नेक्स्ट नंबर को अगर तुम प्रीसीडिंग नंबर से डिवाइड करोगे सो द सेम आंसर आएगा। ठीक है, और यू कैन से दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स। जो दो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। For example, if you have numbers 1, 5, 25, so 5 divided by 1 is the same as 25 divided by 5. लेके आओ, आ जाओ यहाँ बैठो या उधर बैठ जाओ, अलग बैठो दोनों। Or you can say that 5 square is equal to 25. So whenever numbers are in GP, the next number divided by preceding number is always the same. B square is equal to AC. What if four numbers in AP? Sorry, GP. If A, B, C, D are in GP, फिर क्या होगा? If four numbers are in GP, then product of extremes is always equal to product of means. Then A into D is equal to B into C. If four numbers are in GP, then product of extremes equal to product of means. A into D क्या होगा? Product of extreme numbers. And this is product of means. मतलब बीच के दो numbers हैं. So if four numbers A, B, C, D are in GP, then product of extremes equal to product of means. लिख लो. Like if you have 2, 6, 18, 54. These four numbers are in GP because 6 divided by 2 gives you 3. 18 divided by 6, 3. 54 divided by 18 is also 3. तो अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें, इट बी द सेम एज the two numbers in between. The product of means is equal to product of extremes. So this is GP. जनरली क्वेश्चन जो आते हैं ना उनमें कॉम्बिनेशन होता है कि उसमें एपी भी होगा, जीपी भी होगा, एंड देन यू हैव दोस क्वेश्चंस. इन जन
हो गया? तुम लोग टाइम पे क्लास में क्यों नहीं आते? टाइम पे आ जाया करो ना क्लास में। कहाँ आए थे टाइम पे? बाकी लोगों ने सबने लिख लिया, तुम टाइम पे नहीं आए ना। हाँ तो टाइम वेस्ट हो गया ना। जल्दी करो। In general, a GP is like this: A, AR, AR square, AR cube, AR n minus 2, AR n minus 1. Here the first term is A. First term, you can write T1 also or A1 also. First term is A. Second term is A2. Which is AR. Third term is AR square. Suppose you want to find 10th term, it would be AR 9. In general, nth term कितना हो जाएगा? AR n minus 1, which is also called last term. मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, R आएगा। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो तब भी कॉम R आएगा। फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड किया तब भी R आएगा। So this is always common. Ratio of any two consecutive term is always the same. So this is called common ratio. Common ratio could be any real number other than 0, है ना? Common ratio of a GB can be any real number other than 0. 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एनी रियल नंबर। और nth टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये हो जाएगा: if we know first term of a sequence, if we know common ratio, let's take 3, we know the entire sequence. फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो 6, फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो 18, and like that. If you keep multiplying a term by common ratio, you get the next term, and you know the entire sequence. So to know a sequence, we need to know first term and the common ratio only. अब सम का फॉर्मूला कैसे आएगा वो देखो। दिस इज AR, AR square, and AR n minus 2, AR n minus 1। पूरी सीक्वेंस को एक बार लिख लो। नहीं भी वापस आएगा, दोनों मिक्स क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट सम खत्म हो गए। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई द एंटायर सीक्वेंस बाय R, पूरी सीक्वेंस को R से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा R इंटू एस। व्हाट अबाउट दिस AR? उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं कि एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख रहे हैं। दिस विल बी AR, दिस वुड बी AR स्क्वायर। वी शिफ्ट ईच टर्म बाय वन प्लेस टू द राइट। इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय R, will be AR n minus 1. If you multiply this by R, it would be AR n. हमने पूरी सीक्वेंस को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी रीराइट द सीक्वेंस बाय शिफ्टिंग ईच टर्म बाय वन प्लेस टू द राइट। पूरी सीक्वेंस को 8 से मल्टीप्लाई किया एंड शिफ्टेड ईच टर्म टू द राइट बाय वन प्लेस। देखो ठीक है ये। अब सब्ट्रैक्ट करो, ये सारी टर्म्स कट जाती हैं।
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। यहाँ पे आएगा s माइनस आर इन टू एस, दिस वुड बी a माइनस ए आर एन। So that's how you get the formula for in terms of a GP. If you want, you can take negative sign common from numerator and denominator. So this is the same formula. कोई सा भी यूज कर सकते हो, माइनस माइनस कट जाएगा वो। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। सर हाँ, एक बार लास्ट स्टेप वापस बता दोगे? इसमें क्या किया, पूरी सीक्वेंस को r से मल्टीप्लाई किया। तो पूरी सीक्वेंस को r से मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, a बन गया ए आर बन गया ए आर स्क्वायर बिकम्स ए आर क्यूब, ए आर एन माइनस टू बिकम्स ए आर एन माइनस वन, दिस बिकम ए आर एन, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स कट गई आपस में, तो सम का फॉर्मूला डिराइव हो गया। सम ऑफ एन टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए आर एन ओवर वन माइनस आर। व्हाट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज ए आर एन माइनस वन, है ना। इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय आर बोथ द साइड्स विल बी आर एल इज इक्वल टू ए आर एन, यू कैन रिप्लेस ए आर एन बाय आर एल। तो सम ऑफ एन टर्म्स का ये भी फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो, a minus r into l if you know the last term of a sequence. If you know the last term of a sequence, then sum is this. A minus RL over 1 minus R. कई बार क्या होता है, कॉमन रेशियो ऑफ ए सीक्वेंस इज लेस देन वन, मतलब मॉड आर इज लेस देन वन, दैट इज आर की वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में है। कॉमन रेशियो इज बिटवीन वन एंड माइनस वन। तो अगर कॉमन रेशियो वन एंड माइनस वन के बीच में होगा तो क्या होगा, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म वन, कॉमन रेशियो वन बाई टू, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, वन मल्टीप्लाई करो आर से, सेकेंड टर्म आ गया वन बाय फोर, वन बाय एट एंड सो ऑन। तो एज यू नोटिस सब्सिक्वेंट टर्म्स डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। सो इवन दो दस टर्म्स कुड बी लार्ज नंबर, इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन उनका सम फाइनाइट हो जाएगा फिर। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जब आर बहुत छोटा होगा, व्हेन आर इज टेंडिंग टू जीरो, आर टू द पावर एन विल ऑलमोस्ट बी जीरो, बिकॉज वेन एवर आर इज नॉट इवन जीरो, अगर आर बिटवीन वन एंड माइनस वन होगा, आर की पावर एन व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वुड बी ऑलमोस्ट जीरो। जैसे आर पॉइंट वन है, तो आर की पावर टेन कितना हो जाएगा, टेन की पावर माइनस टेन, वेरी स्मॉल। सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अगर कॉमन रेशियो बहुत छोटा है तो सब्सिक्वेंट टर्म्स छोटी होती जाएंगी ना। तो जब सब्सिक्वेंट टर्म्स बहुत छोटी होती जाएंगी, जैसे कि मान लो आर को तुमने पॉइंट वन ले लिया और छोटा ले लो, तो क्या बनेगी सीरीज, वन पॉइंट वन, पॉइंट जीरो वन, पॉइंट जीरो जीरो वन एंड सो ऑन। सो द टर्म विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब उनका एडिशन करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हाँ तो मतलब वन के आसपास ही रहा ना, वन ही रहा ना अगर तुम, हाँ अगर मान लो ये भी तुम्हारा सम आ रहा है, इजंट इट सेम एज वन, ऑलमोस्ट फर्स्ट टर्म के इक्वल है ये। तो इवन दो द टर्म्स आर इनफाइनाइट, सम इज फाइनाइट। तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, आर टू द पावर एन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। सो इस फॉर्मूले में आर टू द पावर एन को जीरो डालो, तो वी गेट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। The sum of infinite GP is A over 1 minus R. But this would be applicable only when this condition is being satisfied. कौन सा? नहीं, यही होता है। इनफाइनाइट जीपी का ये फॉर्मूला है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर इनफाइनाइट जीपी का ये फॉर्मूला वी कैन ओनली यूज व्हेन आर इज बिटवीन वन एंड बिटवीन माइनस माइनस। वन, यस। ओके कॉमन सर, रेशियो मतलब छोटा होना चाहिए बहुत। ठीक है। और सर अगर कोई जीपी है वो इनफाइनाइट जीपी है बट आर डज नॉट लाई बिटवीन वन एंड माइनस तो वन। इनफाइनाइट जीपी, वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा उससे। अगर किसी जीपी का कॉमन रेशियो मान लो 2 है, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी अगर वो है तो क्या बनेगी सीक्वेंस? 1, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब। और अगर इसकी टर्म इनफाइनाइट है तो सब इनफाइनाइट आएगा फिर तो, हाँ जी सर। है ना? ओके। उस केस में सम फाइनाइट नहीं होगा, सम वुड बी इनफाइनाइट। सब्सिक्वेंट टर्म्स का बढ़ सम जाएंगी जीरो ना, होगा। वो इंक्रीज होती ओ जाएंगी। इन्फिनिटी। तो सम वुड बी इनफाइनाइट। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बातें बातें नहीं हो पा रही आज। और मार दिया तुमने टक्कर उसको, ऑटो वाले को? अच्छा, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं लगी, अच्छी बात है। इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन between two numbers. So suppose there are two numbers and we insert some numbers G1, G2, GM between A and B so that the entire sequence is GP. दो नंबर है A एंड B, उनके बीच में मैंने कुछ नंबर्स को इंसर्ट किया, G1, G2, G3 एंड GM। तो एज अ रिजल्ट द सीक्वेंस इज नाउ GP। तो अब कितनी टर्म्स है इसमें टोटल? m+2 टर्म्स है। B इज बेसिकली m+2th टर्म। B जो लास्ट टर्म है वो m+2th टर्म है। तो ये होना चाहिए A R m+2 - 1। बेसिकली हमें कॉमन रेशियो निकालना है। देखो यहाँ तक आ गया है। B/A = R⁻m+1। सो दोनों सॉरी, साइड, हाँ। सेकंड स्टेप में जहाँ पे आपने b इज इक्वल्स टू m+2 वाला लिखा है, वो वाला क्या कर रहा है यहाँ पर? ये वाला, इसमें तो, इस इसमें हमने बेसिकली m नंबर्स इंसर्ट किए थे। एक ही एक्स्ट्रा है, एक ही एक्स्ट्रा है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? टोटल टर्म्स m+2 हो गई ना। हाँ जी, तो उसमें b का कैसे आया? तो b तो लास्ट टर्म है ना, b तो m+2 टर्म हो गई। अगर सपोज m की वैल्यू 10 है, एक ये 11, एक ये 12, तो b कौन सी टर्म कहलाएगी? 12th टर्म कहलाएगी। तो b विल बी अच्छा, 12th टर्म। ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो b इज m+2th टर्म, फिर हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया और फिर से कॉमन रेशियो आ गया। देखो, कॉमन रेशियो आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कॉमन रेशियो इफ वी बिन इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन। अब अगर मुझे फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, G1 टर्म्स, टोटल टर्म्स A और B भी ऐड कर दिया ना उसमें, m नंबर्स इंसर्ट किए थे, एक A था एक B था। क्या हुआ? आज कुछ खाने पीने का नहीं ले तुम? ऐसा मत करो, लाई नहीं आज, नीचे खा लिया सारा।
तो अब नेक्स्ट टर्म जीवन कैसे आएगा? जीवन ऐसे आएगा जब तुम इसको आर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी जीपी में नेक्स्ट टर्म के लिए इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट जी टू कैसे आएगा? इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो। जी थ्री कैसे आएगा? फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं सपोज 10th जीएम निकालना है, इल बी ए आर 10। सो इन जनरल ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में अगर यूर फाइंडिंग से mth जीएम, तो mth जीएम क्या होगा या nth जीएम क्या होगा? ए आर एन। अनलाइक द टर्म में n-1 था, टर्म में n-1 था, बिकॉज जीएम सेकेंड टर्म से शुरू हो रहा है ना, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला ए आर एन। जीपी में अगर प्रोडक्ट गिवन है तो प्रोडक्ट इज बिन गिवन टू यू। 4 टर्म्स कैसे लोगे या 3 टर्म्स कैसे लोगे? 3 टर्म्स इन जीपी वुड बी ऑलवेज ए बाय आर, ए एन ए आर, बिकॉज मल्टीप्लाई करोगे तो आर कट जाएगा। तो इसका एडवांटेज तभी व्हेन यू हैव द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। अदरवाइज यू कैन टेक देम एज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। 4 टर्म्स इन जीपी कैसे लोगे? ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए, हम्म, ए बाय आर नहीं नहीं, क्यूब से गलत हो गया ये। ए बाय आर क्यूब से करना पड़ेगा। ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर एन आर क्यूब। इस बार कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है। 4 टर्म में हमें कॉमन, हाँ नहीं, मल्टीप्लाई करके आर कट जाएगा ना पूरा, तो कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर। 5 टर्म में कहाँ पे? इसमें ये आर क्यूब ही होगा। ये नहीं, आर्स को आर ही होता है, 3 टर्म में कट जाएगा ना आर। कॉमन रेशियो देखो, नेक्स्ट ए को ए बाय आर से डिवाइड करो, आर आ रहा है। ए आर को आर से डिवाइड करो, ये आर आ रहा है। 3 में ये होगा। हम्म हम्म। सेकंड में आर स्क्वायर है, फर्स्ट एंड थर्ड में आर है। यस। क्वेश्चन करते हैं अब। हम्म। फिर 5 टर्म्स में लास्ट टर्म क्या है? ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, सॉरी, इट इज ए आर स्क्वायर है वो। उसे- एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड 3 नंबर्स, फाइंड 3 नंबर्स ए बी सी। फाइंड 3 नंबर्स, क्वेश्चन लिख लो, बाद में बार बार पूछोगे मेरे से। फाइंड 3 नंबर्स ए बी सी between 2 and 18, between 2 and 18, such that their sum is 25. Second condition, the numbers 2a, 2 comma a comma b are consecutive terms of AP. Third condition, the numbers b
comma C, comma 18 are consecutive terms of GP. Find three numbers ABC between 2 and 18 such that their sum is 25. 2, comma A, comma B are consecutive terms of AP and B, comma C, comma 18 are consecutive terms of GP. कर लो. तीन अननोन है, तीन इक्वेशन फॉर्म होगी. यस. तभी तीन अननोन कैसे सॉल्व करोगे? वहां से लाओ जैसे तुम साइन करते हो ना. तीनों कंडीशन सर अपन. आप 2 सेकंड लास्ट स्लाइड पे जा सकते हैं क्या? ये नहीं नहीं, इससे पहले वाली जिस पे प्रोडक्ट वाले में. ये क्या हो रहा है ये? हाँ ये वाली, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू सर. आर एक ही तो आ रहा है. ये एपी है, जीपी है. जीपी में डी होता है, एपी में आर डी होता है, जीपी में आर होता है. तुम कैसी बातें करो बैगी बैगी. हम्म. ये तीन कंडीशन है ना, तीनों का लिखो. लिखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 25. ए प्लस बी. इक्वेशन वन. सेकेंड कंडीशन लगाओ एपी वाली. हम्म. एपी कंडीशन अलग होती है ना. ए प्लस बी प्लस सी 25 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर वन. तीन टर्म अगर एपी में होती है तो क्या होता है? ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स. तो सेकंड कंडीशन ये हो गई. जीपी कंडीशन क्या होती है? स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स. ये तीन इक्वेशन बन गई. तीनों इक्वेशन में हमें क्या करना है? सम हाउ, या तो तुम ए में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो या बी में या सी में. यू टू गेट rid ऑफ द रिमेनिंग टू टर्म्स. करो खुद से, इसको एक बार ट्राई करो. या तो ए को हटा दो तीनों इक्वेशन से, या बी को. मतलब तीन, दो अननोन हटा दो. थर्ड अननोन में क्वाड्रेटिक बन जाएगी. ठीक है. जो तुम्हारा मन करे, एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाओ. 10 मिनट पूरे हैं तुम्हारे पास. जिया तुमने क्या किया? सर हाँ. मैं सेकंड इक्वेशन में डी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट वाली में पुट कर जो दूं? भी करना है, एक वेरिएबल में मुझे इक्वेशन चाहिए. ठीक है. किसी भी एक वेरिएबल में इक्वेशन बना लो, आंसर आ जाएगा, चाहे ए में, चाहे बी में, चाहे सी में. जिया तुम क्या कर रही हो? क्वेश्चन सॉल्व करें. नंदनी. हाँ जी सर। रागिनी. मान्या. हम लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं करते? सर हम्म. मेरा A5 और 17 है A5. और 17 है. अच्छा, दो आ रहे हैं तो अब देखो बी और सी डाल के देखो. दे शुड ऑल्सो सेटिस्फाई दिस ना, दैट ए बी सी मस्ट बी बिटवीन 2 and 18. विहान क्या किया? हाँ. मतलब तीन अननोन है, दो को हटा दो. सर क्वाड्रेटिक.
क्वाड्रेटिक कौन किसने बनाई? नहीं सर, आप पूछने में मैंने क्या किया, तो मैं बोला क्वाड्रेटिक बना। किसने बनाई? अब मैंने कहा था कुछ खा लो, सर तुम पहले ही बनाई खाने नहीं। लगी। यहाँ से निकाल सकती हो, इसमें डाल दो, है ना? फिर यहाँ से बी निकाल के इसमें डाल दो, तो तुम्हारा सी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सी में क्वाड्रेटिक बनाना सबसे इजी है। किया तो है, सही कर रही हो बिल्कुल। सी में क्वाड्रेटिक बनाना सबसे इजी है। देखो, यहाँ से ए हटा देते हैं। 12 आ रहा है। ए आ रहा है 2 + b/2। आ गया ये। इस ए को चुपके से इसमें डाल दो, करो। नोटबुक से बाहर नहीं निकलेगी। और क्या, तुम बातें ऐसी करती हो बहकी बहकी। हाँ, तुम्हें बनाने की जरूरत है? नहीं नहीं, तुम तो अच्छी लड़की हो, सिर्फ वो क्लास में टाइम पर अगर आ जाओ तो बहुत अच्छी हो जाओगी। क्लास में एंटर होना चाहिए तुम्हें 1 मिनट पहले। थोड़ी सी गड़बड़ है, 492 नहीं आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? हाँ, 3b/2 + c = 24, ये आ रहा है विहान? कौन सा? यस सर। अब b को हटा देते हैं, b कितना हुआ? यहाँ से b को हटा दो, b कितना हुआ? c² / 18। तो दिस वुड बी 3/2 × c² / 18। जिन्होंने सी में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लिया वो ए और बी में बना के करो। कौन सा? ये ये इस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आता है। b/2 + b 3b/2 होता है। सो दिस इज a quadratic which is 12c आ रहा है ना? ये आ रहा है। दैट इज सी, यहीं से तुम्हें मिड टर्म भी मिल गया इसका ना, 24 और 12। मल्टीप्लाई मत करो, इससे आइडिया लगेगा कि मिड टर्म इसलिए ये होना चाहिए। तो c + 24 -12 कॉमन, c - 12 = 0। तो c की दो वैल्यूज आ गई, 12 एंड -24। -24 तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज हमें दे रखा है ABC 2 और 18 के बीच में ही होना चाहिए। अनुष्का ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ सर। तो C12 आने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो C12 का मतलब है 12 × 12 / 18। तो B की वैल्यू 8 आ गई। द मोमेंट B इज 8, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 + 8/2 दैट इज 5। A5, B is 8 and C is 12। तो ये इसका आंसर है। अगर तुमने किसी और में क्वाड्रेटिक बनाई तो थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा। बनाया किसी में क्वाड्रेटिक और ट्राई करो। सर मैंने सी में बनाई है बट क्वाड्रेटिक अलग आ रही है। सी में मतलब ही? जैसे आप, हाँ सी में तो ऐसे बना लो ना जैसे लिखा है, वो कहीं प्लस माइनस की गलती कर दी होगी तुमने। जैसे आपने 3b/2 + c = 24 लिखा है, मैंने उसको 3b + 2c वो 48 ऐसे हाँ, तब कुछ। भी वही बात है। हाँ तो मैंने भी उस, वैसे ही करा तो था। क्या फर्क पड़ेगा इससे, वही आंसर आएगा। अब बी को रिप्लेस कर हाँ दो, बी। बट
फिर बी को जब रिप्लेस करा तो उसके बाद फिर c² + 12c - 288 हाँ आ वही तो गया। है, वही तो सेम ही तो इक्वेशन मेरी भी हाँ यही है। ये 288 ही हाँ तो पर होता है। हाँ हाँ तो तो सेम ही तो आई। अच्छा इट्स द सेम। 24 × 12 288 ही होता है। द सेम मैंने रिजल्ट। बी में बनाई थी बट वो बहुत उसमें कैलकुलेशन है। हाँ थोड़ा सा लंबा है, लेकिन देखो ऐसा है ना, बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है तो वो भी आना चाहिए। लेट्स नाउ लेट्स मेक इट इन बी ओनली। ए निकाल लेते हैं, ए हमने निकाल लिया है। इस ए को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अब? ए को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस सेकंड वाले में ना, नहीं फर्स्ट वाले में। तो कितना आ रहा है ये? 2 + b/2 +b + c = 25, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो सेम ही आएगी ना फिर। यहाँ तक सेम आएगा, 3b + 2 + c = 24। अब तुम क्या करोगे, इस सी मैंने बी में बनाना है क्वाड्रेटिक, तो सी को हटा देते हैं। सी कितना है? c = ±√18b। प्लस माइनस भी लेना पड़ेगा। हाँ वो एक ही बात है, लेकिन मान लो सपोज आइसोलेट नहीं किया, तो ये ऐसे लिख लिया किसी ने, +-18b। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? अंडर रूट आ रहा है ना, बी अंडर रूट के अंदर आ रहा है, तो अंडर रूट वाली टर्म को आइसोलेट कर लो। और अभी स्क्वायर मत करो, अभी कुछ कट रहा है। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2b, राइट। यहाँ से भी 3 कॉमन ले लो, 8 - b/2, और फिर स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। इस स्टेप पे स्क्वायर करने पे क्या आएगा? दिस वुड बी 2b, दिस वुड बी 64 + b² / 4 - 4b। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 8b होगा। हम्म इस क्वाड्रेटिक को फिर सॉल्व कर लेंगे। ए में भी बन सकता है, ए में भी इस तरह से √a आएगा, तो वहां भी ये हम्म रूट नहीं आ रहा, ये में हो गया √a नहीं आया। a² -22a + 85 है। हाँ मतलब ने बीच में कहीं आएगा ना, फिर स्क्वायर किया होगा ना तुमने। हाँ ठीक है। आगे बढ़े। नूर हो गया, समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखो, does there exist a GP containing 27, 8 and 12 as 3 terms? Does there exist a GP containing 27, 8 and 12 as 3 terms? If it exists, how many such GPs are possible? Does there exist? नहीं, consecutive नहीं है। Does there exist a GP which contains 27, 8 and 12 as 3 terms? Need not be consecutive, ठीक है? If it exists, then how many such GPs are possible? If it exists, how many such GPs? किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। 3 टर्म्स, उस जीपी की 3 टर्म होनी चाहिए, 27, 8 एंड 12। और ये कंजिक्यूटिव टर्म भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं मतलब मेंशन है कि वो कंजिक्यूटिव टर्म्स है। एक जीपी बनाओ जिसका फर्स्ट टर्म ए ले लो, और टर्म्स ले लो pth, qth एंड rth। सपोज जीपी का कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो कैपिटल आर है, और ये जो टर्म्स हैं, ये pth टर्म है, ये qth टर्म है, और ये rth टर्म है। मैंने कॉमन रेशियो कैपिटल आर इसीलिए लिया ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। लेट द जीपी बी having first term capital A, common ratio capital R, and these 3 numbers are pth, qth and rth terms.
और फिर सर लिखो। जीपी में इन तीनों टर्म्स का ऑर्डर तो यही है ना, पहले 27 फिर 8 फिर 12। नहीं, पीएथ की उदाहरण ले लिया मैंने। अच्छा। तो ये हो गया ए आर P-1, 8 हो गया ARQ-1। हाँ, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का वाला। अब देखो कितने सारे अननोन आ गए ना हमारे पास। देखो अल्टीमेटली इसका एम समझो, हम कैसे पता कर पाएंगे जीपी है या नहीं है। पी क्यू और आर, इनकी वैल्यू अगर इंटीजर आती है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये पॉसिबल है। लेकिन अगर पी क्यू आर इंटीजर नहीं आते, फ्रैक्शन में आते, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हमें ए भी हटाना है और कैपिटल आर भी हटाना है। ए और कैपिटल आर कैसे हटाओगे? डिवाइड कर लो। 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 को 3 से डिवाइड कर दो। इसको उठाओ, सो गई है। तुम्हारे ये नाखून तो नहीं टूटे ना एक्सीडेंट में? बच गई है। ये नहीं टूटने चाहिए, जैसे हड्डी टूट जाए। अब तो ठीक हो तुम? अच्छा, बाद में। अब सेफ चलना। ये कैसे आ गया? बेस खा गई तुम? आर कहाँ गया? कोई बात नहीं, अब यहाँ से आर निकाल के दूसरे वाले में डाल दो, कैपिटल आर भी हट जाएगा। हाँ तो आएगा, वही तो है ना, अननोन बहुत सारे हैं ना। हमें कैपिटल ए भी हटाना है, कैपिटल आर भी हटाना है। नहीं, दो से काम चल जाएगा। इफ आई डिवाइड 1/2 तो क्या आ रहा है देखो जरा। 27/8 इज इक्वल टू, ए से ए कट जाएगा, आर की पावर P-Q, ठीक है। और फिर अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8/12 इज इक्वल टू R⁻Q-R, ठीक है। और जुगाड़ करना पड़ेगा इसमें। दिस इज 3/2 की पावर 3, आर की पावर P-Q। यहां से क्या आएगा? दिस इज, यहाँ से 2/3 आ जाएगा ना, 4 से काट दिया मैंने। सो 3/2 की वैल्यू आ गई यहाँ से। 3/2 कितना आ गया? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 4 से काट दिया ना इसको, 4 से कट गया ये। तो यहाँ से 3/2 की वैल्यू आ गई। 3/2 इज R⁻R-Q। आई गेट दिस एंड आई गेट दिस। अब इस 3/2 को इसमें रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। 27/8 को लिखा 3/2 की पावर 3। रोश, साम्या, क्या कर रहे हो तुम लोग? समझ में आ रहा है? यस सर। सर अब PQR में रिलेशन निकालो, क्या आ रहा है? पढ़ने का। सर PQR में रिलेशन बताओ क्या आ रहा है? सर निकाल। एक और चीज इसमें, अगर हम डिवाइड अपने हिसाब से करें तो इसमें 2/3 भी तो आ सकता हाँ तो 2/3, फिर 2/3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है। है ना। आइडिया है कि कैपिटल आर हट जाए। 2R इक्वल टू P प्लस QR है। राइट। तो अल्टीमेटली हम अपने टारगेट तक पहुंच चुके हैं कि सेम बेस से पावर ऐड हो जाती है ना, पावर इक्वेट हो जाती है, सॉरी। तो नाउ सी, ऑन द राइट साइड ऑल्सो, लेफ्ट साइड ऑल्सो बेस सेम है। तो पावर इक्वेट कर दो, 3R-3Q इज इक्वल टू P-Q, ठीक है। तो 3R इज इक्वल टू P+2Q। अब मैंने कहा था कि जीपी तभी पॉसिबल होगी व्हेन वी हैव PQR एज सम पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब जरा देखो, PQR की क्या वैल्यू ले सकते हैं हम, ताकि वो इंटीजर भी हो पॉजिटिव और इसको इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें।
1 तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा? स्क्वायर कहाँ पे? 27/12 वो काटा तो 9/4 आ रहा। अच्छा ये नहीं, मैंने उसमें 27/12 लिया है 8 की जगह, तो मेरा कोई रिले हाँ तुम्हारा कुछ और आ रहा होगा ना रिलेशन, ठीक है उससे भी निकाल सकती हूँ, फाइनल आंसर सेम आएगा। सो पी क्यू एन आर, ये जो लेफ्ट साइड हमेशा थ्री का मल्टीपल होगा, तो टेक सम वैल्यू सो दैट पी एन क्यू राइट साइड में थ्री का मल्टीपल आ जाए। अगर मैं और क्यू को 1 टू ले लेता लेंगे हूँ, तीनों की क्यू वैल्यू को का मैंने टू ले बार। ली, नहीं तीनों की वैल्यू वन थोड़ी ले सकते हैं कि किसी जीबी में फर्स्ट टर्म भी वन है, और मतलब उस फिर तो ये हो जाएगा ना, फर्स्ट टर्म भी 27 है, फर्स्ट टर्म भी 8 है, फर्स्ट टर्म भी 12 है। एक ही जीपी में तीनों टर्म्स सेम कैसे हो सकती हैं, डिफरेंट कैसे हो सकती हैं? अगर मैंने सपोज क्यू को टू ले लिया तो फोर हो गया, ये थ्री का मल्टीपल है, ये फोर ले लिया, इसको मैं फाइव ले लेता हूँ, तो राइट साइड कितना हो गया अब? 9। मैंने क्यू की वैल्यू रैंडम टू ले ली, हाँ टू फोर हो गया। अब पी डिसाइड करो ताकि वो थ्री का मल्टीपल हो, देखो लेफ्ट में थ्री आ रहा है, तो फिर हाँ, तो टू इंटू टू फोर हो गया, फोर प्लस फाइव नाइन हो गया, तो आर थ्री आ गया। मतलब एक पॉसिबल ये वैल्यू है, एक जीपी हो सकता है जिसमें पीएथ टर्म फिफ्थ हो, क्यूएथ टर्म्स टू हो, मतलब 27 हो जाएगा फिफ्थ टर्म, 8 हो जाएगा सेकेंड टर्म, एंड 12 हो जाएगा थर्ड टर्म। एक जीपी तो ये पॉसिबल है। ऐसी कितनी जीबीज पॉसिबल हो सकती हैं? नहीं एंडलेस हो जाएगा अब ये, अगर एक पॉसिबल है तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, इसके मल्टीपल हो जाएंगे सारे अब। येट इज एग्जिस्ट एंड देयर बी इनफाइनाइट जीबीज पॉसिबल। एक निकाल के, तो जैसे इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, पी को 10 ले लिया, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा सिक्स, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो जाएगा 15, सिक्स एंड नाइन। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। तो यस, देयर एग्जिस्ट अ जीपी एंड सच इनफाइनाइट जीपीज वुड बी पॉसिबल। हम्म, क्या बजा रही हो? नहीं तुम्हें डिस्कस नहीं कर सकता। एक्सरसाइज कर लो, पीछे स्क्वाट्स कर लो। हम्म, हाँ ठीक है, उससे भी आएगा। उसमें तुम क्या करोगे, यहाँ से थ्री बाई इसका रूट निकाल लो। हाँ हाँ, या इसको स्क्वायर, इसको क्यूब कर लो, या इसको स्क्वायर कर लो फिर इक्वेट कर दो। समझ में आ गई बात? इसको क्यूब किया दोनों साइड को, इसको स्क्वायर किया फिर इक्वेट कर दिया। अगर तुमने किसी और वे से डिवाइड किया तब भी आंसर आ सकता है। अगर मान लो एक इक्वेशन तुम्हारी ये आ रही है, दूसरी आ रही है 3/2 का होल स्क्वायर टाइप्स, तो इसको क्यूब कर लो, इसको स्क्वायर कर लो फिर इक्वेट कर दो, तब भी आंसर आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी सबको मालूम है ना? ठीक है। हम्म, नीचे जाना है? अच्छा, नहीं कुछ खाने जाना है, खा सकती हो, ले आओ यहाँ पे। तो इस सेकंड टर्म में 2 to the power क्या है? टू की पावर एक्स। अब एक चीज, एक रिजल्ट लिख लेते हैं पहले। सपोज ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये तो जीपी है ना? वी नो दैट द सीक्वेंस इज जीपी। अगर हम इनका लॉग ले लें तो क्या होगा?
It'll be log A, log AR, it'll be log AR square, log AR cube. फर्दर सिंप्लीफाई करो, log A, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज करो, log A प्लस log R. दिस वुड बी log A 2 log R. log R स्क्वायर हो जाएगा 2 log R, है ना, एंड सो ऑन. दिस इज नाउ AP. ये AP बन जाएगी. और इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म होगा log A, एंड व्हाट इज इट्स कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन डिफरेंस, D होगा इसका log R. ये एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि जब भी किसी GP का हम log ले लें, it will become AP. If three terms are in GP, the logs will be in AP and vice versa. लिख लो. If three terms are in GP, their log will be in AP. No, three or more terms, कुछ भी हो सकता है. जनरली 3 टर्म्स के लिए यूज करते हैं. हाँ हाँ, तो ये AP में है ना, तो इसका मतलब इनकी जो टर्म्स है वो GP में आ जाएंगे. जो टर्म्स हैं वो AP बन जाएंगे, GP बन जाएंगे. यहाँ पे उल्टा यूज होगा ना. अगर लॉग्स AP में है, इसका मतलब वो जो टर्म्स हैं वो GP में है. If terms are in GP, the logs will be in AP and vice versa. If terms are in GP, the logs will be in AP and vice versa. तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि जो बेस है ना वो सेम होने चाहिए, अदरवाइज फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो तीनों लॉग्स के बेस 3 हैं. तो अगर ये लॉग्स, 3 टर्म्स के लॉग्स AP में हैं, बाय दैट रिजल्ट दिस नंबर, दिस नंबर एंड दिस नंबर शुड बी इन राइट. तो हमारा काफी सारा स्टेप बच जाता है इससे. हाँ, तो उसको पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो इस रिजल्ट से हमें ये डायरेक्टली पता लग गया कि इन तीनों टर्म्स के लॉग AP में थे, देयरफॉर दीज आर इन GP. अब सॉल्व कर लो. GP में तुम्हें मालूम है क्या होता है? स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स. स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ये होता है GP में. रोज तुम्हारी फ्रेंड का है आज, कौन? जो तुम्हारे साथ बैठती है क्लास में? ईशानी की दूसरी ट्यूशन होती है इस टाइम पे। हाँ, वही ना. हम्म। क्या? की पर एक्स की वैल्यू एक 9 आ रही है और एक -2 आ रही है। सॉल्व कर लो उसको. क्या आ रहा है? 2 की पावर x -2 कैसे हो सकता हो जाता है कभी कभी. है? नहीं हो सकता। कोशिश करो, हो जाएगा. क्यों कंफ्यूजन है? GP की तुम्हें कंडीशन मालूम है सबको क्या होती है? स्क्वायर और मिडिल टर्म 2 raised to power x - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स. नहीं, उसको 4x मत करो. 2 raised to power x को y लेट कर लो.
अरे ये तो पहले से बचपन से बताया हो तुम्हें। अरे जब से तुम क्लासेस कर रही हो। इमोशनल मत हो। हाँ। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। आ तो रहा सर वाई स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो मिड स्प्लिट से। x की सर दो वाई स्क्वायर माइनस 12y + 32 आ रहा है। सर x की दो वैल्यूज आ हाँ देखो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या आ रही है। एक तो 2 की पावर x 4 आ रहा है और एक 8 आ रहा है, तो 2 और 3 आ रही है। ओके मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ अब ये लिख लो। सबसे पहले ये रिजल्ट लिखो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 2 3 2 3 ऑल ऑफ द अबव। चार ऑप्शन। अनुष्का क्वाड्रेटिक बन गई तुम्हारी। हाँ सर, उसको सॉल्व कर सकते। सर हम्म। लॉग माइनस में नहीं होता। लॉग के वैल्यू माइनस आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। नहीं मतलब इनपुट जो होता है वो माइनस में नहीं होता, हाँ तो फिर सिर्फ 3 होगा। ठीक है। हाँ तो उसको वापस रिप्लेस करो। 2 रेज़ टू पावर एक्स में डालो। तो मैंने बताया था जब भी हाँ इनवर्स ट्रिको के क्वेश्चंस होते हैं या लॉग वाले क्वेश्चन या मॉडुलस वाले क्वेश्चन होते हैं, हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखो क्या वेरीफाई नहीं हो रहा है। क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, वाई स्क्वायर माइनस 12y 12y प्लस प्लस 30। 13 30। 32। सर 32। वही लिखा है भाई। नाराज क्यों हो रही हो तुम। तो y कितना हो गया 8 और 4। तो y की दो वैल्यूज आ गई 8 और 4। लेकिन y कितना होता है 2 रेज़ टू पावर एक्स। तो 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 2 रेज़ टू पावर 2 एक्स की वैल्यू आ गई 3 एंड 2 आ गई। ठीक है। अब ऑप्शन में 2 एंड 3 भी दे रखा है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए फिर मनसीरत। ए। ए आंसर नहीं होगा बिकॉज अगर हम एक्स की वैल्यू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये नेगेटिव आएगा। लॉग ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, मतलब x2 नहीं हो सकता है। तो 2 डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली आंसर इज दस। लॉग ऑफ ए नंबर के नॉट, लॉग ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। लॉग ऑफ ए नंबर तो नेगेटिव हो सकता है, लॉग किसी नंबर का नेगेटिव तो आ सकता है, लेकिन पसंद आया तुम्हें लॉग का क्वेश्चन। अन्य तुम क्या कर रही हो, पिज्जा ऑर्डर। तो आ ही जाएंगे ना, तो पहले बुलाना है। अच्छा। हम्म। वो इतना दिमाग नहीं लगाना चाह रही ना।
उसको किसी ने बोला दिमाग यूज करोगे तो कम होता जाएगा, वो यूज नहीं करती। अब इस बार इस क्वेश्चन में बेसिस डिफरेंट है। वो वाली सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी कि अगर टर्म्स जीपी में होती हैं तो लॉग्स एपी में होते हैं, अगर लॉग्स एपी में है तो टर्म्स जीपी में हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पहले बेस सेम करने पड़ेंगे। यस, मैंने बेस वाली प्रॉब्लम बताई थी ना तुम्हें। एक तो ये था लॉग ऑफ ए नंबर टू द सेम बेस वन होता है, लॉग ऑफ ए टू द पावर एन अगर है तो एन लॉग ए हो जाएगा। लेकिन अगर लॉग बेस की पावर एम है तो बेस की पावर हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, सार सबके बेसिस सेम कर लो। हर टर्म का बेस थ्री होना मांगता है। और देवेना, हाउस द जोश? मायूस क्यों इतना? पढ़ाई हो रही है ज्यादा आज? अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? सबका बेस थ्री कर लो। तो वन को क्या लिखोगे? वन को ही कहना है लॉग थ्री टू द बेस थ्री। वन को हम लिख लेंगे लॉग थ्री टू द बेस थ्री। ये नाइन का जुगाड़ करो। नाइन को लिखो थ्री स्क्वायर, और यहाँ भी चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, थ्री की पावर वन, थ्री की पावर माइनस एक्स। ये तो बचपन से बेचारा सीखा है, तो कुछ नहीं करना है हमें। फोर इंटू थ्री की पावर एक्स माइनस वन। चाहो तो थ्री की पावर एक्स को वाई भी लेट कर लेंगे एंड में, कुछ नहीं हुआ। लाएंगे ना। हम्म। अब हमने बेस सबका थ्री कर दिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हाफ आधे आगे बैठा हुआ है, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो हाफ को उधर ले जाओ, थ्री बाई थ्री की पावर एक्स प्लस टू की पावर हाफ बना लो इसको। लॉग की प्रॉपर्टी कहाँ पे? देखो थ्री की पावर एक्स को वाई डालेंगे ना एंड में, इसको वाई डाल देंगे ना एंड में, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा इसको भी। अब वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इफ लॉग्स ऑफ सम टर्म्स आर इन एपी तो वो टर्म्स विल बी इन जीपी। तो ये टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ये ये पूरी टर्म, और ये पूरी टर्म किस में है? जीपी में। यस। तो थ्री बाई थ्री की पावर एक्स प्लस टू की पावर हाफ एंड फोर इंटू थ्री की पावर एक्स माइनस वन आर इन जीपी। अब जीपी की कंडीशन में मालूम है स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक आ गई। ये यहाँ गलती कर दी ना तूने, हाफ नहीं लेना था। हाफ तो पावर में आएगा ना, लॉग में। सर हाँ, बोलो। थ्री की पावर एक्स फ्रैक्शन में आ रहा है बट आंसर लॉग में। तो फ्रैक्शन लॉग हमेशा, जब भी एमसीक्यू करते हो चीटिंग करो। चीटिंग इन द सेंस, ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है। ऑप्शन में लॉग आ रखा है ना, तो लॉग लेके कर लो। क्या हुआ मायरा, यहाँ तक आ गई? क्वाड्रेटिक बन गई तुम्हारी?
सर कर रहे हैं, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बीच में। ऐसा क्यों? लेट 3 x वाई। तो जीपी में क्या होता है? स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म। जब तुम स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। हाँ तो ऑप्शन तो देखो जरा, हमेशा पहले ऑप्शन देखे जाते हैं। ऑप्शन देख के सॉल्व करो। अब ऑप्शन तुम्हारे पास ये वापस सब्स्टिट्यूट करो इसमें, 3 की पावर x लिखो उसको। अब ऑप्शन का है, तुम लिखे ऑप्शन इसके। बस बढ़िया है, सही जा रही हो तुम। ऑप्शन लॉग के टर्म में दे रखे हैं, तो लॉग ले लो, या तो लॉग। बहुत ड्राइंग बनाती हो तुम। इसको y ले लिया ना, अब इसको ओपन कर दो। तो कोई ऐसा था, वो लॉग वाले दिन थी ना, तुम यहाँ पे नहीं थे। लॉग ऑफ ए नंबर टू द सेम बेस, एक तो 1 होता है हमेशा। लॉग a इंटू बी अगर है तो वो ऐसे हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग ए बाई बी है तो वो हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है। नहीं, ये बेस लिख दिया मैंने, मैं बेस लिखा नहीं था यहाँ पे। बेस, बेस लिखना होता है वैसे, बेस मैंने लिखा नहीं है। नहीं नहीं, बेस 1 नहीं हो सकता। बेस हमेशा जो होता है ना, इफ़ यू हैव लॉग एक्स द बेस बी, तो बी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा और 1 to infinity होगा। 1 नहीं होता कभी भी। जैसे टू द बेस ई होता है या टू द बेस 10 होता है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन में दे रखा है। फिर अगर लॉग ए की पावर एन है, बेस नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो एन बाहर आ जाता है। अगर लॉग ए बेस की पावर एम है, सपोज बेस बी ले लिया, तो एम बाहर डिनोमिनेटर में आता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी थी हमने यहाँ पे। वो 9 था ना, उसको 3 स्क्वायर लिख दिया था। लॉग ए टू द बेस बी, इसको तुम रीड करोगे लॉग। नहीं, इसको कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो तुम्हारा ये और ये दोनों इक्वल है तो 1 हो जाएगा ये। ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस। जैसे लॉग 4 टू द बेस 3, इसको यू कांट डू एनीथिंग। वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 3 बाई। बाई -1। ओके, तो दिस इज 3 + 2y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 12y - 3। और 3 + 2y इज इक्वल टू 12y² - 3y। तो क्वाड्रेटिक क्या बनी तुम्हारी? 12y² - 5y - 3। तो 12 3 से 36 होता है, तो 9 and 4, यही क्या है ना? तो 3y कॉमन, 4y - 3, एंड देन +1 कॉमन, 4y - 3। तो अब y की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया -1/3, दूसरा y आ गया 3/4। y कितना था? y था 3 3 जो है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 3 कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। 3 के नॉट बी नेगेटिव, ये तो घट गया। दिस इज 3 इज इक्वल टू 3/4। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर राइट साइड में हम 3 का बेस तो बना नहीं सकते ना। लेकिन ऑप्शन जरा देखो, ऑप्शन लॉग के टर्म में दे रखे हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग लॉग टू द बेस 3। दोनों साइड का मैं लॉग ले रहा हूँ, टेकिंग लॉग टू द बेस 3। सो लॉग 3 टू द बेस 3, log 3/4 to the base 3। I can take log to the base 4 also because option to the base 4 भी आ रहा है। बट पहले एक बार 3 लेके देखा मैंने, बिकॉज आई नीड x। तो अब log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, x आ गया बाहर। log ऑफ नंबर टू द सेम बेस कितना होता है? 1। यहाँ log की प्रॉपर्टी लग गई, log 3 to the base 3 माइनस log 4 to the base 3। किसी भी नंबर का log टू द सेम बेस 1 होता है, तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है?
बी आर है, वही आंसर है। तो हमेशा ऑप्शन देखो और फिर मूव करो आगे। ऑप्शन लॉग के टर्म में था। एक और चीज होती है, इस ऑप्शन में दे कुड हैव गिवन यू लाइक दिस आल्सो, 1 माइनस 1 ओवर लॉग 4 टू द बेस c also, because log a to the base b is always 1 over log b to the base। माई ये भी लिख लेना, ये वाली प्रॉपर्टी। log a to the base b is always 1 over log b to the base है। तो इतना लंबा क्वेश्चन था ये। हाँ ये भी था, ये भी था। हाँ ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, एक ही बात है। हाँ क्या बोल रही हो? कोई बात नहीं, तभी तो एसपी दिल्ली मिलेगा। सर, हम्म। सर लास्ट स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है हमने? लॉग ऑफ 3/4 टू द बेस 3। ये लास्ट स्टेप सर, लास्ट क्वेश्चन का लॉग ऑफ 3/4 टू द बेस 3 को हमने लॉग 3/4 ये टू वाला द बेस। इसके बाद हाँ जी सर, इसके बाद। मैंने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। हाँ जी सर, वो ठीक है सर। लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3/4 टू द बेस 3 को हमने लॉग 3 टू द बेस 3 माइनस लॉग 4 टू द बेस 3 करा। ये वाला, सेकंड लास्ट था। नहीं ये सर, राइट साइड के सर्कल के ऊपर। हाँ जी। ये हाँ जी, हाँ जी सर। लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए बाई लॉग। बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, वो तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। गली के हाँ जी, धोबी को नहीं। पता को इतना, लॉग ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। हाँ जी सर, वो बेस ना मेरे को बेस से आता है। क्या भूल गया। बात कर रहे हो? लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, ये सबसे इजी था। और ये लॉग, रिगार्डलेस ऑफ द बेस। हाँ मतलब बेस कुछ भी हो सकता है ना सर? हाँ, मतलब। बेस से फर्क नहीं पड़ता। log of x by y to any base will be always log x minus log y. The only thing is base will remain the same. ओके। और कुछ? मान्या, नंदिनी? नहीं ये तो हाँ सर। समझ में आ रहा नहीं है। सर। बहुत दिन से यस गायब हो सर। तुम। सर मेरे ना स्कूल में एग्जाम चल रहे थे तो मैं पास। तो स्कूल संडे को भी होता है क्या? नहीं सर, मेरा ना फिजिक्स का पेपर था मंडे को और केमिस्ट्री का था फ्राइडे को, और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। चलो ठीक है, अब वो वीडियो देख लेना लेकिन तुम। यस सर। तुम क्लास में नहीं आ रही तो नंदिनी भी नहीं आ रही थी, बोला कि मेरी फ्रेंड नहीं आ रही क्लास में, मैं भी नहीं आऊंगी। सर आ तो रही थी। उससे पहले वो तो सर डांस का मतलब। हम्म। ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है जो कि जेई पेपर 1 में रिपीट हो चुका है और जेई पेपर 2 में 27 में आएगा। हम्म। और क्या? नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्या हो रहा है। यस। अच्छा क्वेश्चन है ये। तीन अननोन है, तीन कंडीशंस हैं, तीनों को यूज करो। एपी की, जीपी की, तीनों कंडीशन है ना। एपी कंडीशन में क्या करते हैं? ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू दिस प्लस दिस। जीपी कंडीशन में इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस। और थर्ड ये दे रखा है। हाँ।
और जो क्वेश्चन में गिवन है सारा वो भी देख लेना है। ए इज लेस देन बी लेस देन सी, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, उसको भी तुम्हें समवेयर यूज करना पड़ेगा। ए बी सी आर इन ए बी में 3 टर्म सीक्वेंस में ही है वो। हाँ। हम्म। हाँ, B1/2 आएगा। अगर 3 टर्म एपी में होती है तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, तो ये हो जाएगा ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। एक आएगा तुम्हारा ये जीपी में, तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म विल बी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ये हो गया। तीसरी कंडीशन ये है, करो सॉल्व तीनों को आपस में। ठीक है। ठीक है, ए इक्वल टू, तो तुम ए प्लस सी को रिप्लेस कर देती है ना 2b से, ए प्लस सी को, तो 3/, हाँ तो 1/2 आएगा बी। ठीक है, B1/2 आ गया। इस बी को तुम एक काम करो, इसमें डाल दो, ए प्लस सी आ जाएगा। ये यूज क्यों नहीं कर रही ये वाला? इसमें तुम क्या करोगी, ए प्लस सी को इसमें डाल दो, ए प्लस सी को B/2 डाल, B डाल दो। एक तो ये आ गया। इसमें ए प्लस सी को रिप्लेस कर दो, ए प्लस सी इज 2b, तो बी आ गया 1/2। बी को 1/2 वापस डाल दो इसमें, ए प्लस सी 1 आ गया। हम्म। हमें ए चाहिए, सी को हटाओ ना समाओ। फिर मैं B⁴ से उसे लाइक सब्स्टिट्यूट कर दूं उसमें A + C = 1 में। बी को तो हटा दो ना, बी इज 1/2, बी को रिप्लेस करो, बी तो 1/2 आ चुका है ना। अच्छा। हाँ कर लो, क्वाड्रेटिक बनाओ। राघव तुम क्या कर रहे हो? एशल एंड राघव, सर क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ। बन गई क्वाड्रेटिक? ठीक है, बना सॉल्व। रहा हूँ। अनुष्का, हाँ सर। सब कुछ आ रहा है समझ में बराबर? ज्यादा है सर। मजा आ रहा है मैथ्स में अब? हाँ मैथ्स, मैं कोशिश कर रही हूँ लाइक हाँ रोज प्रैक्टिस मैथ्स मैथ्स फन है, धुरंधर मूवी की तरह है। मैं तुम लोगों को धुरंधर बनना है मैथ्स का। ट्रैवलिंग कम, छुट्टी कम। गुड। सीधा वो बाद में जाना जब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, फिर तुम विदेशी चली जाना, वहीं रख जाना बस, एडमिशन ले लो बस एक बार। आंसर कितना आ रहा है? गड़बड़ हो गई तो, ये यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक से वो ए प्लस सी तो तुम, ये भी सही था। तो ये ए प्लस सी 1 आएगा ना, तुम 1 मिस कर देगी तुमने। और क्या, ये बी हाफ था, तो ए प्लस सी 1 हो गया। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, अब तुम वापस देखो कंडीशन में, पूरा क्वेश्चन लिखा है नहीं लिखा है, मैं देखना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन लिखती नहीं हो तुम, तो जब क्वेश्चन नहीं लिखोगे तुम क्या सोल्यूशन देख के क्वेश्चन बनाओगी बाद में? ये रिवीजन यहाँ से करना है तुम्हें।
तो इसको देख के तुम क्वेश्चन फॉर्म करोगे, क्या क्वेश्चन है लिखो पहले अभी क्वेश्चन, सब जगह ऐसे ही किया तुमने? नहीं नहीं, मैं तुम्हें सारे, अब अगली बार से मुझे ध्यान रखना है तुम्हें कहाँ बिठाना है। लिखो क्वेश्चन, लिखो यहाँ पे पहले। क्वेश्चन में दे रखा है ए इज लेस देन बी लेस देन सी। तो बी अगर हाफ आ रहा है तो ए हाफ नहीं आ सकता। आ रहा हुआ ना, कि हाफ आ रहा है। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, जब तुमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो तुमने मजे से इसको प्लस माइनस नहीं किया। हाँ मुझे मालूम है, बी स्क्वायर को प्लस माइनस इसी करना है। जब तुम यहाँ पे रूट लोगे ना, तो बी की दो वैल्यूज आएंगी, बी स्क्वायर एक तो आएगा प्लस ए सी, और दूसरा आएगा माइनस ए सी। प्लस ए सी से तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। अब बी की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो ये 1/4 हो गया। ए प्लस सी कितना है? 1, तो यहां से सी को हटा दो। सी कितना है? 1 माइनस है। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, आएगा ना, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो यार ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। तुम गूगल के चक्कर में मैं ईगल बन जाओगी। ए हाफ आ रहा है, ए के नॉट बी हाफ। उनको तो एक ऑप्शन हाफ भी देना चाहिए था, बिकॉज काफी लोग तो ये पढ़ेंगे ही नहीं कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, ए के नॉट बी हाफ। तो ये रूल आउट हो गया, पूरा कट गया। योर करेक्ट आंसर विल कम फ्रॉम द सेकेंड ऑप्शन। इसको सॉल्व करो, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। बी इज 1/2 और सी की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस है। क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो इस क्वाड्रेटिक को। तो उसमें 1 खा जाती है ना बार बार। सी में क्यों क्वाड्रेटिक बनाना जब तुम्हें एक चाहिए तो? एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगी अननेसेसरी। जो अननोन चाहिए उसी में क्वाड्रेटिक फॉर्म करो। तुम तो क्वेश्चन लिखती हो ना पूरा। हाँ, इसको एक दिन 4 घंटे पहले बुला के सारे क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं। इससे क्या क्वाड्रेटिक बन रही जरा देखो। 1 = -4a + 4a² यही है ना। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको डी मेथड से करना पड़ेगा। डी यूज कर लो। तो ए विल बी -b ± b² -4ac/2a विच इज 8। 432 का क्या हो जाएगा? 4√2। 8 से डिवाइड कर दो। 1/2 ± 1/√2। देखो ऑप्शन ऐसा है। इनको एक ऑप्शन ये भी देना चाहिए था वैसे। 1/2 + 1/√2। काफी लोग ये भी ऑप्शन लिख के आएंगे, लेकिन अगेन लुक एट दैट, ए इज लेस देन बी, तो ए लेस देन बी ये वाला होगा। इनफैक्ट ये जो आंसर है ना, इसी का आंसर है, इसी का आंसर है, बिकॉज सी बी से बड़ा है। सर हाँ मेरा थोड़ा ना डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ए को, मतलब वो होता है ना A-D, ए और A+D करके ले लिया था। अच्छा अच्छा, वो उसमें एक अननोन एक्स्ट्रा आ रहा है ना। हाँ, तो उससे थोड़ा बड़ा हो गया फिर। बट आंसर तो आना चाहिए। देखो ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जब तुमने स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस लेके सॉल्व करोगे। जनरली क्या, हाँ, वो तो 99% लोग पॉजिटिव वाले को सॉल्व करते हैं, उससे आंसर नहीं आ रहा है। द सेम क्वेश्चन। हाँ हाँ, बिकॉज ये दे रखा है ना, इतनी जोर से लिखा हुआ है यहाँ पे, ए इज लेस देन बी विच इज हाफ।
सर तो सेकंड केस में मतलब जब बी स्क्वायर माइनस ए सी लिया तो मेरी डी की वैल्यू 1/√2 आ रही है, डी। मतलब कॉमन डिफरेंस की। अच्छा अच्छा, तो पूरा वो कॉमन वो निकाला ना। 1/√2 ना, ठीक तो हो गया फिर, आ तो गया। तो अगर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 1/√2 आ रहा है, तो अगर ये हाफ है तो उससे पहले वाली टर्म कितनी होगी? 1/2 माइनस माइनस 1/√2। और नेक्स्ट वन कौन सी होगी? 1/2 प्लस 2 प्लस 1/√2। 2। वही आ गया ना, सेम आंसर आ गया। इसने ए बी सी को ले लिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और फिर डी निकाल के सॉल्व किया। तो डी आ गया 1/√2, तो बी तुम्हें मालूम था। तो नेक्स्ट टर्म वुड बी ऐड कॉमन डिफरेंस, प्रीवियस में डिफ माइनस कर दो उसको, सेम थिंग। सर वो a+2d a+3d नहीं लिया था, a-d a और a+d हाँ लिया था। ठीक है, मतलब जैसे भी किया था, पर वो थोड़ा लंबा हो जाता है। क्या अभी टाइम हो गया? कभी तो 2 मिनट में कुछ और बात कर लेते हैं। ये जीपी है ना? अगर जीपी की हर टर्म को तुम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? हाँ, हर टर्म को के से मल्टीप्लाई कर दो, इट स्टिल रिमेन अ जीपी, कॉमन रेशियो विल रिमेन द सेम, एंड द सम विल बिकम के टाइम्स। वो एपी का किया था तुम मैथ्स मैथ्स भुलवा देना मेरे को, ठीक है? पिज्ज़ा वगैरह कम खाया करो तुम, गार्लिक ब्रेड। हाँ, लिख लो। इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी is multiplied by a real number k, if each term of a GP is multiplied by a real number k, the resulting sequence remains a GP. The resulting sequence is also a GP with common ratio same, and its sum will become k times, and the sum becomes k times the original sum. Right? See you next time. सर एक बारी सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो कि रिजल्टिंग सीक्वेंस इज Resulting आल्सो sequence will remain GP with same common ratio, and the new sum would be k times the original sum. Thank you, sir. ओके सर। Okay, bye bye. Thank you. Thank you, sir. सर